Last lecture we did till ascomycetes, right? Asco हुआ था, phycomycetes हुआ था. Today we'll be doing with basidiomycetes and deuteromycetes and we'll be completing this chapter. Okay. Cell में कहाँ तक हुआ है? प्रियंका मैम started with cell, right? Yeah. Okay. After this chapter, we'll maybe start with the next chapter, that is plant kingdom. Let's first complete this chapter. Once the fungus part is done, I'll revise the entire fungus part, so don't worry about it. Let's continue from where we had stopped last time. The next is basidiomycetes, right? Examples are very important. Make sure you're writing the examples then and there. Basidiomycetes में सबसे पहले आता है mushroom, bracket fungi or puffballs. Okay. Now, all these three types of mushrooms or fungus you have already seen or already learned about it. Okay, I'll just show you the images. Definitely आपने ये देखा होगा. Yeah, puffball. Sir, just a minute, sorry to disturb. This chapter का starting वाला page, it has a QR code now. Mm-hmm. Can you display that on phone, because right now I don't have my book, so I'll open it. Oh, just a second. I don't think so. The PDF has that QR code. Yeah, only the book has it. Do you want me to send you the PDF of this chapter? Yes, sir, you can. Yeah, just a minute. Yeah, send you the chapter. Okay, this is how puffballs look like. This though you might have seen, right? They are also quite spooky at times, and generally there are certain mushrooms which are also used as drugs. Okay, so the drug wala mushroom is also from the puffball family. They have a very specific strong flavor or strong smell. Okay, and one more example which was given there was this. Yeah, bracket fungi also I'll show you. That also is quite common. Yes, this is bracket fungi. It grows transversely on the bark of trees. This is also quite common. Once you go at any place which is slightly isolated where the pollution is quite less, you'll find these bracket fungi. So be it in national parks or be it in any isolated area where there is less of pollution, very less sunlight, you will see this growing very well. Even in fact, if in a building, if a room is locked for quite a long period of time, if the door is made up of wood, on the base of the wood, if it is wet enough, they will grow very luxuriantly. They are called as bracket fungi. Okay, so these are the examples of basidiomycetes. Let's move forward. They grow in soil, on logs, the tree stumps. What do you mean by tree stumps? What do you mean by tree stump? Yes, Ria. What is tree stump? Are they the branches which usually come out on the ground? The branches, the roots, niche ka. No, not the branches. What is stump?
Okay, imagine if there is a huge tree. Okay, this, for example, is a huge tree, and it is cut for maybe any wood purpose or any other purposes. The only part remaining is this part, right? This part, or just the base of the tree, is called stump. Stump word will come 2 times in your entire 2 years course. One is here, and one you will find this part in maybe reproduction in organism, which is in 12th class, chapter number 1. When you do grafting, grafting, pata hai what is grafting? You add one tree to another tree. So if I want to make a rose plant, where एक ही rose plant में I want different kinds of rose flowers, different colors of rose flowers, I can use that. I can use this technique. So what I'll do, I'll take a base plant which will be of a rose, and every branch I'll cut it and I'll add one more different kind of rose which is present. Okay, so maybe अगर मेरा बेस प्लांट रेड कलर का रोज है, तो उसी के हर एक ब्रांच को मैं कट करके, एक टेक्निक होता है कटिंग का, देन यू एड इट लाइक अ पजल. दूसरे में ट्विग को ज्वाइन करूंगा. सपोज एक येलो फ्लावर लगा दिया, एक व्हाइट फ्लावर लगा दिया, एक पर्पल फ्लावर लगा दिया, एक व्हाइट लाइट पिंक या लाइट स्काई ब्लू कलर का फ्लावर लगा दिया. I'll tie it with a thread, okay, or there is something called as organic glue. उस तरह से I'll tie it, and that entire tree will show different kinds of rose flowers in just one plant. Okay, तो जो base होता है कोई भी plant का या कोई भी tree का, that is called stump. Is this clear? So अगर कोई बहुत पुराना ट्री है जिसमें ऊपर वाला पार्ट पूरा चला गया है, so the base part is called stump, and यहाँ पर you will see bracket fungi very luxuriantly growing इस तरह से. Okay. Yes, easy. Chalo, so that is about in living plant bodies. They also live in living plant bodies as parasite. Example, rust and smuts. Okay, rust disease, smut disease, they are very common in monocots. Monocots as in all the crop plants like maize, wheat, rice, everything you will find rust. Okay, have you seen wheat? Have you seen the grain of wheat? At times on the grain of wheat, you will see small red color powdered substances on it. That can be the rust disease, and it is very dry. Usually जब हम fungus सोचते हैं, it is all wet and mushy, right? But this rust is very dry. It is almost powdery. जैसे like how on our cupboard or on our corners of bed हमको वो धूल दिखाई देती है, that dust we see. Similarly, that same kind of texture you will find on the wheat, that is rust. Also, smuts is a disease of plant. The mycelium is the thread-like structure, right? Is branched and septate, which means it is branched. Okay, and it has septate or division. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is quite common. Asexual spores नहीं मिलता है. Asexual spore, okay, sexual spore, asexual spore we have already done. They are not found in Basidiomyces. It is very important. But vegetative reproduction as in type of asexual reproduction is seen. See, asexual spore present नहीं है. That does not mean कि ये सिर्फ sexually reproducing organism. It can produce asexually, but asexually spores नहीं होगा. It can be by fragmentation. Fragmentation as in I take a mycelium, I cut it, I make 2 or 3 equal pieces. That 2 or 3 equal pieces will be 2 or 3 funguses. Clear? The sex organ is absent, but plasmogamy is brought by fusion of 2 vegetative or somatic cells of different stains or genotype. So plasmogamy is basically fusion of plasma. In funguses, we know that पहले plasmogamy होता है. Then there is a stage where in one cell there is 2 nucleus, so we call it dikaryon stage or dikaryophase. And then karyon, that is nucleus, fuses, that is called karyogamy. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to the basidium. और जब दो karyota fuse हो जाएगा, I will get basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. Karyogamy और meiosis होगा basidium में, okay, and they will give rise to 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced basidium. See, इसके ऊपर वाले में endogenous था, है ना? यहाँ पर exogenous is outside the body.
एंडोजीनियस में स्पोरेंजियम कुछ इस तरह से होगा एंड यहाँ पर स्पोर्स होंगे अंदर की तरफ। एक्सोजीनियस में स्पोरेंजियम कुछ इस तरह से होगा और स्पोर्स जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? The basidia are arranged in the fruiting bodies called basidiocarps. Very, very important. The fruiting body of basidium is called as basidiocarp. Basidiocarp. Some common examples are agaricus, Ustiligo, that is smut, Puccinia that causes rust disease. तो इसके यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख देंगे टाइटल में ही, जैसे हमने सब में लिखा हुआ है। सबसे पहले मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल। सो M B P. Then you have agaricus. Agaricus is again the name of mushroom only, but you will still write it AUP or PUA. अपू लिख देते हैं। agaricus, Puccinia and Ustiligo. Ustiligo से होता है smut disease, very very important. Puccinia is rust disease. Both this disease are plant disease, वो भी लिख दो। Yes, done. बेसिडियोकार्प, बेसिडियोस्पोर्स। सी यहाँ पर मियोसिस हुआ। मियोसिस समझते हो? मियोसिस इज रिडक्शनल डिविजन वेर 2n से you will find 4n, that is पहले nn होगा, then these two cells undergo division to give you 4 haploid cells. Yes, so this is meiosis division or meiotic division. This is meiosis 1, this is meiosis 2. ये बेसिक पता है। meiosis में diploid becomes haploid and you get 4 cells, whereas in mitosis haploid becomes 2 haploid or diploid becomes 2 diploid. Easy? Yes, do you remember this? 9th या 10th में किया होगा meiosis mitosis. Yes, sir. Okay, even if you don't recollect it, don't worry. Basic meiosis mitosis पता है, इसके बारे में पूरा चैप्टर है cell division and cell cycle. There you will learn in detail about every process which we are showing here. Okay, चलो, is basidiomycetes done? Let's move to the deuteromycetes part. That is the last part of fungi. See, deuteromycetes is the bacha kucha part. Bacha kucha part as in general, whenever you study classification, there will always be one category जहां पर कुछ नहीं आ रहा था, तो एक अलग से कैटेगरी बना दिया miscellaneous stuff के लिए. Okay, so in general, whenever you're making your market list or whenever you're making your shopping list, you always have this miscellaneous column. या जब भी आप पैक कर रहे हो या घर पे भी कुछ सामान रख रहे हो, there is always a miscellaneous stuff वाला डब्बा और miscellaneous stuff वाला ड्रॉवर। जैसे 5 किंगडम में वो प्रोटेस्टा था, जो लोग कहीं पर भी नहीं आ रहे थे उनको सबको डाल दिया प्रोटेस्टा में। फंगसेस में ड्यूट्रोमाइसिटिस को हम कहते हैं imperfect fungi because this fungus is still not studied very well, or we still don't have enough information about this classification of funguses. So what we do is we have made another category and then we study that this is imperfect, which means इसका सिर्फ vegetative phase होगा। इसका जो sexual phase है या इसका जो mature phase है वो हम study करेंगे या तो बेसिडियो में या तो एस्को में। Okay, let's see what it is. First इसके यहाँ पर ड्यूट्रोमाइसिटिस के यहाँ पर लिख दो imperfect fungi. Imperfect fungi, very very important. Commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of fungus is seen. मतलब सिर्फ asexual या vegetative phase होता है। जैसे ही ड्यूट्रोमाइसिटिस में sexual phase आएगा, this entire fungus will be either transferred to basidio or asco. Okay, ड्यूट्रोमाइसिटिस will not show any sexual phase. Very very important. स्टार मार दो वो पूरे स्टेटमेंट को, या तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दो, ड्यूट्रोमाइसिटिस will not show sexual phase. ओके, तो वो जो क्वेश्चन होता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उसमें अगर स्टेटमेंट आता है तो याद रखना ड्यूट्रोमाइसिटिस में सेक्सुअल फेज नहीं होता बिकॉज व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म इज अटेन्ड
we either move the fungus into Basidio or Ascomycetes. Easy. When the sexual forms of these fungi were discovered, they would move into class they rightly belong to. It is also possible that the asexual and the vegetative phase has been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage, that is another, is placed under another class. मतलब ऐसा हो सकता है, सपोज कोई फंगस है, सपोज से एग्जांपल कोलेक्टोट्राइकम का एसेक्सुअल फेज ड्यूट्रोमाइसिटिस में आता होगा और उसी का सेक्सुअल फेज आता होगा शायद एस्कोमाइसिटिस में. ओके, तो एस्कोमाइसिटिस में उसका सेक्सुअल फेज आ गया, बट उसका जो एसेक्सुअल फेज होगा वो होगा ड्यूट्रोमाइसिटिस का. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है. Later, when the linkage was established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. तो पहले बहुत सारे फंगसेस को ड्यूट्रोमाइसिटिस में रखा था, बट एज एंड व्हेन लिंकेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, लिंकेज एज इन इवोल्यूशनरी लिंकेज, कौन सा फंगस कहाँ से आया है, क्या उसका एंसेस्टर है, हाउ डज इट इवॉल्व, हाउ डज इट शो सिमिलैरिटी पैटर्न्स बिटवीन द अदर फंगसेस, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको अपर कैटेगरी में मूव कर दिया है. क्लियर? यस. Once perfect or sexual stage of the member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Asco and Basidio, but never Conidio. Very very important. Conidiomycetes में नहीं डालेंगे या Phycomycetes में नहीं डालेंगे, जो ऊपर वाला कैटेगरी था उसमें नहीं डाला जाएगा. It is only Basidio and Asco. Is this clear? Yes, Soumya, याद रहेगा ये. Deuteromycetes का sexual phase will always be transferred to either Basidio or Asco, never to the Phycomycetes category. The Deuteromycetes, सीधी सी बात है, अगर वो asexually reproduce कर रहा है तो it will have only asexual spores. Yes or no? और asexual spores का हमने पिछले वाले पेज में लिखा हुआ है. asexual spores में क्या क्या आता है, sexual spores में क्या क्या आता है. asexual spores में था Conidia. Yes. The mycelium is septate and branched. mycelium कैसा है, septate है, मतलब डिविजन वाला है और ब्रांचिंग वाला है. Some members are saprophytes और parasites. कुछ members saprophytes है और parasites है. While a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. कुछ decompose करते हैं litter को यानी waste को, और mineral cycling में help करते हैं. Example, cat as in Polytrichum, Alternaria and Trichoderma. So cat comes under Deuteromycetes. Okay. Cat और litter याद रखो. Decomposition of litter is in Deuteromycetes, and cat के शायद babies को kitten कहते हैं, and their a group is also called litter, right? तो cat litter याद रखो. Cat is Colectotrichum. ठीक है, Colectotrichum बोलो या Colectotrichum बोलो. Colectotrichum एग्जैक्ट वर्ड है जो आपके बुक में यूज किया है, तो Colectotrichum मत बोलो. ओके, Colectotrichum, ट्राइकोडर्मा एंड ऑल्टरनेरिया. ये जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा से ही आपका वो बोरिक पाउडर बनता है जो कैरम में यूज करते हो ना, बोरिक पाउडर. दैट बोरिक पाउडर is a very special kind of thing because this is produced by a fungus and it is used to kill another fungus. It is like antibiotic. एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया से बनेगा और वो बैक्टीरिया को ही किल करेगा. उसी तरह से ट्राइकोडर्मा produces a powder like substances and it is mixed with Bordeaux mixture and we make boric acid boric powder. So it is sprayed on wood to keep it fresh so that nothing grows on it easily, right? So this is about Deuteromycetes. Yes. Now let's quickly revise everything about funguses what we have learned till now. Let's come here to the notes section. Yes, mode of nutrition, fungi के classification हमने पढ़ा था, Phyco और Zygomycetes. Then we studied about Basidiomycetes, Ascomycetes and Deuteromycetes. Asexual reproduction, sexual reproduction, plasmogamy, karyogamy, haploid spores. फिर वो स्पोर्स जहाँ गिरेंगे वहां पर फिर से नया ग्रो करेगा. Yeah. Let's see Phycomycetes first. Phycomycetes is the first category. Only group to have aseptate and cenocytic hyphae. Cenocytic as in
one cell many nucleuses. Asexual reproduction is by sporangium. Mitosis होगा, zygospore बनेगा, zygospore is motile, sorry, zoospore is motile, aplanospore is non-motile. And wherever the spores fall, they will grow and they will form into a fungi or a hyphae or the fruiting body. Sexual reproduction is by fusion of gametes. पहले cytoplasm fuse होगा, that is called plasmogamy. उसके बाद zygosporangium बनेगा, that is एक ही zygote होगा मगर दो nucleus होंगे, the nucleus is still not fused. This phase is called dikaryon phase. Then the nucleus fuses, will get 2n. This nucleus undergoes meiosis, sporangium बनेगा. ये sporangium से haploid spore जहां जहां गिरेंगे वहां वहां नया नया hyphae grow करेगा और नया नया fungus form करेगा. Example ram या mar, mucor albugo rhizopus. Then is ascomycetes, that is called as sac fungi. Examples for picnic, put yeast, penicillium and in a sac, truffles and morels. So ये उसका example याद करने का mnemonic है. Although mnemonics specifically for bio, I would suggest mnemonics पे इतना भरोसा मत रखो, because at the end of the session ना आपके पास इतना सारा mnemonic हो जाएगा, you just remember the statement of mnemonics, अंदर क्या था वो याद नहीं रहता है. So it is better, okay, कि आप जहां पर एग्जाम्पल मिलता है वो पैराग्राफ में वहीं पर एक बार लिख लो टेक्स्ट बुक में. सो whenever you are reading it, you will find कि अच्छा ये इसका एग्जाम्पल है. Because many a times what happens, you remember the examples, you know Aspergillus, Claviceps, Neurospora, ये सब एक का है, बट किसका है वो याद ही नहीं है. ठीक है, Ascomycetes से भूल जाओगे, which means you remember the answer but you don't remember the question. And mnemonic में हमेशा सिर्फ आंसर का स्टेटमेंट होगा, कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, जैसे राम या मार याद रहेगा बट वो किसका है, फाइकोमाइसेटिस का, ये याद ही नहीं रहेगा. इसीलिए डोंट रिलाई ऑन निमोनिक्स कि चलो निमोनिक्स आ गया तो अब मुझे याद हो जाएगा, ऐसा मत रखो. बिकॉज सी स्पेसिफिकली इन दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स वेयर देयर इज टू मच ऑफ एग्जांपल्स टू रिमेंबर. फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल्स नहीं थे, सेकंड चैप्टर में एग्जांपल है, प्लांटे में एग्जांपल है, एनिमेलिया में एग्जांपल है, मॉर्फो में एग्जांपल्स है. दीज चैप्टर्स आर वेरी हेवी वेटेज वाला चैप्टर्स. ओके, एंड यू tend to mix up and match up all the mnemonics at once और पूरा फिर खिचड़ी हो जाएगा. ठीक है, यूजुअली क्या करते हैं सब लोग ऐसे निमोनिक पे ज्यादा ध्यान देंगे और निमोनिक पढ़ लो, बच्चों को मजा आता है कि हाँ निमोनिक आ गया तो मतलब मुझे पूरा आ जाएगा. नहीं, सिर्फ वो आंसर याद है, वो किसका है वो भी याद रखना जरूरी है. ओके, चलो एस्कोमाइसेटिस में ईस्ट आएगा. और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंगस का क्लासिफिकेशन है बिकॉज इसमें मैक्सिमम यूसेज ह्यूमन वेलफेयर वाली चीजें हैं. पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक बना, ये भी इसी कैटेगरी में आता है. मॉरल्स, ट्रफल्स, they are used as edibles. Then aspergillus, antibiotics. Claviceps, neurospora is used in genetic work, research के लिए यूज किया जाता है. It is septate and branched, which means it has branching, also has division. Asexual reproduction is due to conidia, which grows exogenously, very very important. Conidia exogenously था, asexual वाला तो sexual वाला था वो endogenous था. सेक्सुअल में कोनिडिया फ्यूज करेगा, डाइकैरियन फॉर्म करेगा, उसको हम कहेंगे एस्कस. मियोसिस होगा, एस्कोकार्प बनेगा, उससे जो स्पोर्स रिलीज होंगे, जहां जहां स्पोर्स फॉर्म करेगा वहां वहां नया नया कोनिडिया डेवलप करेगा. Then you have Basidiomycetes, that is what we did today. Commonly known forms are mushrooms, bracket fungi and puffball. Branch होगा, septate होगा. Septate means again it will have divisions and it will have branching. No asexual spores. There is no asexual spore. Okay, only sexual spores are present, but asexual reproduction is present. Asexual reproduction is by fragmentation. Clear? Even this is dikaryon phase. Dikaryon phase is in N plus N phase. So first the plasma fuses or the cytoplasm fuses, then it forms basidiocarp. Basidiocarp से basidium, then nucleus fuse होगा, karyogamy होगा, उसके बाद meiosis होगा. मियोसिस में 4 स्पोर फॉर्म करेंगे. ये 4 स्पोर जहां जहां गिरेंगे वहां वहां से नया नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा. इजी. एग्जांपल प्यूसिनिया विच कॉजेस रस्ट, यूस्टिलोगो विच कॉजेस स्मट, दोनों प्लांट डिजीजेस है. एंड अगैरिकस, अगैरिकस इज नथिंग बट मशरूम. सी ब्रैकेट मशरूम का, सॉरी ब्रैकेट फंगाई का या ब्रैकेट मशरूम का या और पफ बॉल का साइंटिफिक नेम नहीं दिया बिकॉज दे आर कैटेगरीज. अब पफ बॉल के अंदर कम से कम 500-600 टाइप के फंगस हो सकते हैं. ब्रैकेट फंगाई के अंदर कम से कम 40-50 टाइप के फंगस हो सकते हैं. जैसे मशरूम कैसे कैटेगरी है,
वैसे ही ब्रैकेट फंगाई या ब्रैकेट मशरूम एंड पफबॉल इज अ कैटेगरी, इसलिए उनका साइंटिफिक नेम नहीं दिया गया। क्लियर? इजी। चलो, दैट इज अबाउट फंगस। नहीं, ड्यूट्रोमाइसिटिस बाकी है, सॉरी। ड्यूट्रोमाइसिटिस कैट लिटर याद रखो। imperfect fungi as only asexual phase is known, and as the sexual phase are known we can move it to either ascomycetes or basidiomycetes, but never to phycomycetes. asexual spores are conidia, conidia are asexual spores. mycelium branch भी हो सकता है, aseptate भी हो सकता है। example coletotrichum, alternaria and trichoderma। easy? Yes? Any doubts still here? Riya, Soumya? No, sir, not. रिया, नो डाउट्स? कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक मेरा फेवरेट है। फेवरेट क्यों? बिकॉज इसमें हम नए नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और वो नया चीज़ है वायरस। ओके, वायरस के बारे में व्हाट ऑल थिंग्स यू नो, प्लीज टेल मी व्हाट आर वायरसेस। ए ये बाकी, रुको रुको, लेट्स जस्ट रीड दिस टू पैराग्राफ्स। ओके, व्हाई प्लांटेन एनिमलिया आर गिवन वेरी स्मॉल? बिकॉज दे हैव देयर ओन प्राइवेट चैप्टर्स। ठीक है, उनका खुद से अलग अलग पूरा पूरा चैप्टर है। सो किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमलिया आर गिवन इन वेरी शॉर्ट। We'll quickly just go through it. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organism called as plants. Okay, सीधी सी बात है, प्लांटे को हमने टेबल में भी पढ़ा था। दे आर ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर। few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants and parasites. Certain plants can be heterotrophic, or you can say they are partially heterotrophic, because जो insectivorous plant है वो भी सिर्फ नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी सारा कंटेंट उसको अभी भी सॉइल से ही मिल रहा है। ओके, एग्जांपल ब्लैडर वॉट, देन वीनस फ्लाई ट्रैप, वो देखा होगा, वो फ्लाई को पकड़ लेता है। ओके, देन यू हैव पिक्चर प्लांट, देन यू हैव कस्क्यूटा विच इज अ पैरासाइटिक प्लांट जिसको हम अमरबेल कहते हैं। तो देयर इज अ क्रीपर विच ग्रोज ऑन ट्रीज एंड इट वाइंड्स अप अपॉन द ट्रीज, और जब वो ट्री के ऊपर ग्रो करता है तब वो अपने रूट्स को पूरा का पूरा वो ट्री के अंदर डाल देगा और उसके फ्लोएम से पूरा खींच लेगा न्यूट्रिशन। तो खुद कुछ करता नहीं, दूसरे किसी को मार देता है या दूसरे किसी के ऊपर होस्ट बन के रहता है। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल होता है जिसमें सेल्यूलोज होगा। यू विल स्टडी अबाउट यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन चैप्टर 8। Plantae includes algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm। तो ये 5 कैटेगरीज है जो हम लोग देखेंगे। 5 डिविजन्स है, बिकॉज प्लांट में इट इज डिविजन एंड नॉट फाइलम। ओके, so this is what we'll learn. Then life cycle of plants have 2 distinct phases. The first is diploid sporophytic and haploid gametophytic. Okay, अब ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। राइट नाउ स्पोरोफाइटिक फेज मतलब प्लांट मेन बॉडी जो 2n होगा, जैसे रूट, स्टेम, लीफ हो गया, ये डिप्लॉइड है। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है वो हो जाएगा तुम्हारा पोलन ग्रेन या ओव्यूल ऑफ द फ्लावर। ओके, ये मैंने एंजियोस्पर्म का बात किया। जिम्नोस्पर्म में कुछ अलग होगा, ब्रायोफाइटा में कुछ अलग होगा, टेरिडोफाइटा में कुछ अलग होगा। हर फाइलम में, सॉरी, हर डिवीजन ऑफ प्लांट में स्पोरोफाइट फेज, गैमेटोफाइटिक फेज अलग अलग होता है और ये ऑल्टरनेटिवली आता है। तो पहले स्पोरोफाइट आएगा, फिर शायद गैमेटोफाइट आएगा, उसके बाद फिर से स्पोरोफाइट आएगा, बिकॉज गैमेट फ्यूज करेंगे और वो फिर से स्पोरोफाइट बना देंगे। या ऐसे हो सकता है कि पहले गैमेटोफाइट आया, ठीक है, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट आता है, फिर गैमेटोफाइट आएगा, ऑल्टरनेटिवली चलता रहेगा। दैट ऑल्टरनेट्स विद ईच अदर। The length of the haploid and diploid phase and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plant. This is called as alternation in generation. कभी कभार एक ग्रुप, जैसे एंजियोस्पर्म्स का बात करें, इन एंजियोस्पर्म्स दी ओवरऑल प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड। यस, यस और नो? रूट, स्टेम, लीफ सभी कुछ डिप्लॉइड है। सिर्फ एंथर के अंदर का पोलन ग्रेन और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर का ओव्यूल, यही सिर्फ हैप्लॉइड है। और पहले क्या आएगा? सीधी सी बात है, डिप्लॉइड फेज पहले आएगा। मतलब पहले कोई भी प्लांट में सबसे पहले रूट, स्टेम, लीफ आएगा, फिर जाके फ्लावर आएगा। और जो गैमेटोफाइट फेज है वो तो बहुत कम टाइम के लिए है ना। बचपन से लेके प्लांट के बचपन से लेके अब तक पूरा का पूरा प्लांट इज इन डिप्लॉइड फेज only for a fraction of second, not fraction of second, but for a very small fraction of time
इट हैज गैमेटोफाइटिक फेज इन देयर लाइफ। यस, उसमें भी जब पोलन और वो वापस बन जाएंगे फिर वापस डिप्लॉइड बन जाएगा। मतलब स्पोरोफाइट आया, फिर गैमेटोफाइट आया और फिर से स्पोरोफाइट आया, तो ऑल्टरनेटिवली हो रहा है। दूसरा, डोमिनेंट यानी सबसे पहले कौन आया, स्पोरोफाइट आया, ठीक है, गैमेटोफाइट उसके बाद आया, प्लस गैमेटोफाइट पूरा का पूरा फ्लावर डिप्लॉइड है, सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स हैप्लॉइड है, which means जो हैप्लॉइड फेज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिप्लॉइड फेज। यस और नो? तो एक इंडिपेंडेंट हो गया, एक डिपेंडेंट हो गया। ओके, वन इज फ्री लिविंग एज इन द स्पोरोफाइट, लीफ रूट डज नॉट रिक्वायर गैमेटोफाइट टू एग्जिस्ट। ओके, सो ये जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। देन कम्स किंगडम एनिमेलिया। This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organism that are multicellular and their cell lack cell wall. ये multicellular होते हैं, heterotrophic है, and they do not have cell wall, which means cell wall is absent. Okay, they directly or indirectly depend on plants for food. They are directly dependent on plants for food, or they are indirectly dependent on plants for food. They digest their food in an internal cavity and stored food reserves as glycogen or fat. तो वो इंटरनल कैविटी में फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब एक ओपनिंग से खाना खाएंगे, दूसरे ओपनिंग से खाने को नहीं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे। ओके, दैट इज इंजेशन एंड इजेशन। प्लीज रिमेंबर, एक्सक्रीशन इज नॉट रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, एक्सक्रीशन इज व्हाट द बॉडी एक्सक्रीट। सो ह्यूमन बॉडी में बात करें एक्सक्रीशन का, तो एक्सक्रीशन में आएगा यूरिन फॉर्मेशन and not human feces. Defecation is not excretion, that is just the removal of the substances which is not absorbed by the body. दोनों different है। ओके, सो हमारे में या इन जनरल एनिमल्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का मतलब होता है देयर विल बी एन ओपनिंग फॉर इंजेशन ऑफ फूड एंड देयर माइट बी अनदर ओपनिंग फॉर इजेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। क्लियर? यस, they have a definite growth pattern and grow into adults that are definite shape and size. definite growth pattern होगा, ठीक है, मतलब पहले लार्वा स्टेज आएगा कुछ एनिमल्स में, कुछ में कोई बेबी स्टेज होगा, फिर एडल्ट फॉर्म होगा, और डेवलपमेंटल चेंजेस होते रहते हैं। हायर फॉर्म जैसे हायर एनिमल्स वर्टिब्रेट्स हो गए, they will have elaborate sensory and neuromotor mechanism. सेंसरी मैकेनिज्म होगा, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होगा। न्यूरोमोटर यानी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर मूवमेंट। Okay, right now if I am telling you something, you are listening to it by your sense organs, right? You are looking at me, आप उसको respond कर रहे हो, आपके ब्रेन में नर्व्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं कि अच्छा ये वर्ड बोला गया है, इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंगली आप हेड नॉट कर रहे हो या चीजों को मार्क कर रहे हो। तो ये आपका सेंसरी सिस्टम काम कर रहा है, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपके मसल्स काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेशन तरीके से हो रहा है। ओके, इमेजिन एवरी वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग, ये हर एक वर्ड का वाइब्रेशन आपके ईयर के थ्रू जा रहा है ब्रेन में, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है कि अच्छा ये वर्ड का मतलब तो वर्ड है, अकॉर्डिंगली आप उसको प्रोसेस कर रहे हो। एंड राइट नाउ इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, आप सोच रहे हो अच्छा इतना सब कुछ हो रहा है इतने कम टाइम में, राइट? है ना? और अभी आप हेड नॉट कर रहे हो या मूव कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू योर ब्रेन। एंड नाउ यू आर थिंकिंग दैट कि बाप रे कितना सब, ये तो अंदर के अंदर के अंदर के अंदर हो गया। अभी खुद को क्रिस्टोफर समझ रहे हो आप, क्रिस्टोफर नोलन के मूवी जैसा सपने के अंदर सपने के अंदर सपना, राइट? आवर ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे मे बी इन द लेटर हाफ ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दे आर आल्सो केपेबल ऑफ लोकोमोशन। सी, लोकोमोशन अब तक मोटिलिटी था, लोकोमोशन नहीं बोला था। मोटिलिटी मतलब स्पोर शायद मूव कर रहे थे, ठीक है, या कोई पार्ट एक पार्ट से दूसरी जगह पर जा रहा था और फिर वहां पर ग्रो कर रहा था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिलिटी एंड लोकोमोशन। मोटिलिटी मतलब ये मूवमेंट, ये अगर मैं हाथ मूव कर रहा हूँ ये मोटिलिटी है, बट अगर मैं पूरा का पूरा बॉडी का लोकेशन चेंज कर रहा हूँ उसको मैं बोलूंगा लोकोमोशन। सो प्लांट्स शो मूवमेंट बट दे डोंट शो लोकोमोशन, ठीक है? कभी देखोगे नहीं तुम टमाटर का प्लांट ऐसा उठ के बारिश में आके फिर बिल्डिंग के अंदर आ गया कि नहीं अरे बहुत बारिश आ रहा है, नहीं ना, दे विल मूव, दे वोंट लोकोमोट। लोकोमोशन इज चेंज ऑफ लोकेशन या चेंज ऑफ पोजिशन, ठीक है? अगर मैथ्स होगा तो मैथ्स में भी आपने देखा होगा शिफ्ट ऑफ लोकस होता है। आप ग्राफ में बनाते हो, 2 पॉइंट बनाया, फिर दूसरे लाइन का 2 पॉइंट बनाते हो, फिर आप देखते हो कि अरे हाँ ये लाइन का इक्वेशन ये लाइन के इक्वेशन से अलग है तो पोजीशन शिफ्ट हो गया। ओके,
द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन. कॉपुलेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉपुलेशन? कॉपुलेशन इज सेक्सुअल मेटिंग. ठीक है, तो अभी हम ना थोड़े से बड़े हो गए. ठीक है, अब जब तक हम 10th में थे तब तक हम बोलते थे मेटिंग बोलते थे. मेटिंग वाज अ टर्म यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते थे. अब हम कुछ नए नए टर्म सीखेंगे फॉर द सेम थिंग. ओके, साइंस में बहुत कॉमन है, एक ही चीज को 10-15 नाम देने का तो कूल बन जाता है. ओके, जैसे यू फॉर कॉपुले, सो सेक्सुअल मेटिंग इज नथिंग बट कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोइटस. ये तीन चीज हम लोग याद रखेंगे. दिस थ्री टर्म्स मीन सेक्सुअल मेटिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? 12th में चैप्टर नंबर 2 में हम इसके बारे में बहुत अलग अलग वर्ड्स देखेंगे, और हर पैराग्राफ में अलग अलग उन्होंने यूज किया. कहीं पर सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा है, कहीं पर कोइटस लिखा हुआ है, कहीं पर कॉपुलेशन लिखा हुआ है. तीनों का मतलब सेम है, सेक्सुअल मेटिंग. इजी. It is by male and female, coitus by male and female और copulation by male and female followed by embryological development. मतलब फिर embryo form होगा, उसके बाद अलग अलग फाइला के अलग अलग फीचर्स होंगे, that will study in chapter number 4. Now let's move to viruses. What are viruses? Yes, viruses जिसकी वजह से हम सब इस तरह से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो और दुनिया भर का जो प्रॉब्लम्स है सब चल रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वायरसेस. व्हाट आर एग्जैक्टली वायरसेस? कैन यू टेल मी अबाउट इट? यस सौम्या, व्हाट आर वायरसेस? It's more of an infection, name Okay, is it that living or? can be spread in. Very good, it is infectious, it spreads a lot. Yes Riya, is it living or non-living? Non-living. Sure, non-living है, living It's नहीं है. actually living, but it dies in 3 days. Something like, sorry, Okay. COVID in particular. Okay, let me tell you, both are equally correct and equally wrong. Okay, I'll answer to this question in the next session. This session is going to end, so we'll see whether the viruses are living or not. Okay, chalo fatapat join the next session. Viruses are acellular, okay, and they are on the verge of living and non-living, as I told you. In the 5 kingdom classification of Whitaker, Whitaker as in R.H. Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms. See, very important. Acellular organism में कौन-कौन आ रहा है? Virus, viroids and prions. इनके बारे में इंट्रोडक्शन या इनके बारे में मेंशन था ही नहीं. See, lichen is not acellular. Very important. Lichen is not acellular. Some acellular में ये तीन आते हैं. Lichens are symbiotic association between fungus and algae. ठीक है, तो फंगस भी एक सेल है, algae भी एक सेल है, बट दे आर सो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर कि पता ही नहीं चलता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो साथ में रह रहे हैं. ओके, विच मीन्स दे स्टिल हैव अ सेल, बट वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस इनके पास सेल नहीं होता है. सिंपल सी बात है. वायरस में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन वायरस? वायरस के स्ट्रक्चर में दो चीजें होती है. दे हैव जेनेटिक मटेरियल एंड दे हैव अ प्रोटीन कवरिंग, राइट? प्रोटीन कोट. yes or no? Okay, genetic material can either be DNA or RNA. Either DNA और RNA. एक एग्जांपल है वायरस का जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है. प्लीज फाइंड दैट एग्जांपल फॉर मी. दैट विल बी योर होमवर्क. Find example of virus which has DNA and RNA both as genetic material, or which has both DNA and RNA. Okay, mostly viruses will have either DNA or RNA and they will have a protein covering. तो जो अगर हम कोविड वायरस का भी बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है. उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन या क्राउन प्रोटीन होता है. द रीजन इट इज कॉल्ड कोरोना वायरस. प्रोटीन कवरिंग होगा और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा. आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है वो. ठीक है, एचआईवी वायरस का भी डायग्राम हमने देख रखा है स्कूल लेवल में, राइट? दिस इज द प्रोटीन कवरिंग एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. अब आते हैं वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के ऊपर. Viruses are very small, okay? So viruses are small, so small that they infect bacteria. I repeat, viruses are so small
दैट दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया एक तो दिखता नहीं है, इमेजिन करो बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्ट कर सकता है, इतना छोटा है वायरस। Viruses are literally nanometers. Nanometer is 10 raised to minus 9 meters. That is 0.00000001 meter. Okay. It is so small. I repeat, it is so small that if you take a stand of your hair, if you cut it transversely this way, ऐसे नहीं है, ऐसे अगर आप कट करोगे into 10 lakh pieces, ठीक है, that one piece will be around 1 nanometer. That is the size of a virus. Extremely small. Compound microscope में तो देख ही नहीं सकते हो. You require proper electron microscope to view that virus. Okay. Similarly, viroids जो होते हैं, viroid, ये जो रहा viroid, viroids are nothing but proteins. Sorry, viroid are nothing but just free nuclear material. Viroids, they do not have protein covering. They are just genetic material, that is DNA और RNA, either RNA और DNA, कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक RNA या DNA का मॉलिक्यूल है जो इन्फेक्शियस हो सकता है। यूजुअली वायरॉइड्स हमारे लिए इन्फेक्शियस नहीं है, बिकॉज वो प्लांट में डिजीज कॉज करते, अब तक उन्होंने ह्यूमंस पे डिजीज कॉज नहीं किया है। इमेजिन करो वायरसेस के ऊपर प्रोटीन कवरिंग है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अगर वायरॉइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, विच मीन्स वायरॉइड इज मच स्मॉलर देन वायरस, यस और नो? Virus have protein covering and inside the protein covering there is genetic material. But if viroid is just the RNA and DNA, free RNA and free DNA, it is very much smaller than viruses. Yes. So viroids are much smaller than viruses. They cause plant disease. Then you have something called as prion. अब देखो वायरस में क्या था? प्रोटीन था और जेनेटिक मटेरियल था, राइट? जेनेटिक मटेरियल से बना है वायरॉइड, प्रोटीन कवरिंग से बनेगा प्रायोन। तो प्रायोन होगा फ्री प्रोटीन, वायरॉइड होगा फ्री जेनेटिक मटेरियल, प्रायोन होगा फ्री प्रोटीन। इसलिए प्रायोन का साइज और वायरस का साइज सेम होगा, बिकॉज दोनों प्रोटीन कवरिंग्स है। इजी? यस। अगेन प्रायोन से भी कुछ कुछ Yes. डिजीजेस होती है, but those diseases we will learn as and when we read about it. But this is the basic information about viruses, prions and viroids. Viruses are made up of genetic material and protein covering. Viroids are pure free genetic material, that is free RNA molecule or free DNA molecule. Prion is the protein, free protein that can cause infection to any plant, not plant, animals. Okay. Then we have lichens. Lichens are association of fungus and algae. Let's read about it. Viruses के ना बहुत नखरे हैं. Okay, I'll tell you what the नखराज are. Viruses बड़े स्पेसिफिक होते हैं. स्पेसिफिक मतलब अगर प्लांट वायरस है तो वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, अगर एनिमल वायरस है, पर्टिकुलर एनिमल का वायरस, तो पर्टिकुलर एनिमल को ही इन्फेक्ट करेगा। हाँ, अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो वो दूसरे एनिमल तक आ सकता है। जैसे जो कोविड का वायरस था, दैट वाज इनिशियली फ्रॉम अ बैट, फिर वो बैट से हमारे में आया। स्वाइन फ्लू पिग में था, पिग से हमारे में आया। बर्ड फ्लू बर्ड्स में था, बर्ड से हमारे में आया। तो वैसे वो चेंज कर सकता है, बट यूजुअली बहुत सारे वायरसेस स्पेसिफिक होते हैं, विच मीन्स इफ आई हैव अ टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्ट्स टोबैको प्लांट, और अगर मैंने पूरा टोबैको मोज़ेक वायरस का मस्त जूस बना के पी लिया तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? बिकॉज मैं ह्यूमन हूं, मैं थोड़ी टोबैको का प्लांट हूँ। ओके, टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करेगा, मेरे में डिजीज नहीं करेगा। या मैंने कोविड वायरस का इंजेक्शन भर के प्लांट में डाल दिया तो प्लांट को भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज प्लांट के पास लंग्स ही नहीं है, ये जाके इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। प्लांट्स के लिए इट इज जस्ट नॉन लिविंग पार्टिकल। क्लियर? So they are very specific. Similarly, bacteriophage होता है। Bacteriophages are viruses that infect bacteria. देखो, bacteriophage is made up of two words, bacterio and phage. Phage माने eating. So this viruses are bacteria eating viruses. So they actually eat up virus or they infect virus. Okay, तो वो सिर्फ बैक्टीरिया को हार्म करेगा। तो अगर मैं वो वायरस कंज्यूम करता तो मुझे कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट बैक्टीरिया, राइट? Let's read about it. बट सर मेरे बॉडी में जो बैक्टीरिया है उनको तो हार्म करेगा ही। नहीं, अगर मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है,
मेरे माउथ का बैक्टीरिया या मेरे स्टमक के बैक्टीरिया, मेरे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, वहां तक पहुंचते और वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। अगर वहां तक पहुंच भी जाएगा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मेरे बॉडी के बैक्टीरिया शायद मर जाएंगे, बट उससे मुझे क्या। ओके, viruses, viroids, prions, lichens. These are briefly introduced here, which means इतना डिटेल में नहीं है, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, सीधी सी बात है। चैप्टर इज नॉट मेनली अबाउट एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, कोल्ड के बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, इट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, राइट। इट इज एन शॉर्ट फॉर्म फॉर द एंटायर सिम्टम। फ्लू जो हम नॉर्मली कहते हैं उसमें वायरस होता है, ओके, वायरल फ्लू। आजकल वायरल फ्लू नहीं बोल सकते, हमको क्वारंटीन सेंटर में डाल देंगे, ओके, बट आज से कम 2 साल पहले काफी कॉमन था वायरल फ्लू। एक को होता था, फिर दोस्ती दोस्ती में हम सभी को बांट देते थे स्कूल में, है ना। तो आज फर्स्ट बेंच पे किसी को था, तो 1-2 हफ्ते बाद उसके बाजू वाले को होगा, फिर उसके घर में 3-4 लोगों को हो जाएगा, और काफी कॉमन था। दैट इज हाउ इट स्प्रेड्स, राइट। What effect viruses can have on us, even if we do not associate with our condition? Viruses did not find a place in the classification since they are not considered truly living. If we understand living as the organism that have cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characterized on having an inert crystalline outside the living cell. मतलब it is non-living organism outside the living cell. Inert crystalline structure, inert मतलब एकदम उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा आउटसाइड द लिविंग सेल, विच मींस इनसाइड द लिविंग सेल इट कैन चेंज द स्ट्रक्चर, इट कैन ऑल्टर द स्ट्रक्चर। क्लियर? यस, यहाँ पर देखो आपको 2 डायग्राम दिख रहा है, ये है बैक्टीरियोफेज और ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एक हेलिकल प्रोटीन है, देख सकते हो, ये अंदर जो है ये उसका डीएनए होगा और ये उसका प्रोटीन कवरिंग है जो ग्रीन ग्रीन कलर का आप देख रहे हो। तो हो गया जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कवरिंग। यहाँ पर ये उसका प्रोटीन कवरिंग है, इसके अंदर होगा उसका जेनेटिक मटेरियल। ये मस्त, हैव यू सीन द मूवी धूम 2? धूम 2 देखा है आपने? उसमें एक सीन है जहाँ पर ऋतिक रोशन वो डायमंड चोरी करता है, वो कोई म्यूजियम में से, तो वो एक रोबो लेके करता है स्टैचू बन के। उसमें दैट एंटायर रोबोट का स्ट्रक्चर वाज कॉपीड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। तो अगर बैक्टीरियोफेज के पास लॉयर होता तो बैक्टीरियोफेज केस करता था धूम 2 वालों पर कि तुमने मेरा कॉपी कर लिया स्ट्रक्चर, ओके। एंड दिस स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन, बहुत सारे रोबोज ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपने बहुत बार देखा भी होगा मूवीज वगैरह में, कैसे वो बाहर निकल रहा है कीड़े जैसा और जा रहा है। दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। कितना मस्त कार्टून एनिमेटेड सा स्ट्रक्चर लग रहा है ना। आई एक्चुअली शो यू द इमेज, किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, एंड बाय हाउ कम वी कैन यूज दिस बैक्टीरियोफेज। ओके, लेट मी शो इट राइट नाउ ओनली, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। I'll also try to show you how it infects. Okay, you can see this head part and this is the sheath part. ये spring जैसा होता है and these are tail fibers. तो ये बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर अटैच करेगा, ऐसे अपने आप को प्रेस करेगा, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस तरह से नीचे जाएगा और वो बैक्टीरिया में इंजेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर ये बैक्टीरिया है सपोज, ये बैक्टीरिया के ऊपर जाएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ से यहाँ पर आके बैक्टीरिया के अंदर जाके चेंजेस करेगा। ओके, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर फ्रेंड बैक्टीरियोफेज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज बैक्टीरियोफेज की वजह से वी हैव स्टडीड अ लॉट इन रिसर्च एंड द डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री। This is how it looks under electron microscope. You can see the head part, the neck part or the sheath part, and the tail fiber. Yeah, this is a 3D model जो हमने उससे सिलेक्ट किया है, मतलब
the earlier image was from the microscope and उसको फिर हम लोग डिजिटली प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर पे, तो कुछ इस तरह से बनेगा कि एग्जैक्टली वो ऐसा होगा. Yeah, this is the protein part, this is the fibers, this is the head part. Exactly, this is how it will look. Yes, see. Yes, see, this is the cell of bacteria. कितना बड़ा दिख रहा है ना बैक्टीरिया का सेल वायरसेस के सामने. एंड यहाँ पर दे आर अटैचिंग और ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं. ओके, और ये लोग जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करके जा रहे हैं. मतलब इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, अब ये लोग इन्फेक्ट कर रहे हैं एक बैक्टीरिया को. Okay, this is how it looks. See, this is how it attaches itself. प्रेस करेगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा अंदर. And this, what is coming out, they are small viruses from the bacteria, is that bacteria had inserted into it. See, this is the electron microscopic images. So ये बैक्टीरिया का सेल है और ये बैक्टीरियोफेजेस है जो उसके ऊपर इन्फेक्ट कर रहे हैं, राइट? ओके, अब देखते थोड़ा वायरसेस के बारे में, किसने फाइंड आउट किया वगैरह वगैरह. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host and a host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call viruses living or non-living? Inside the body they are living, outside the body they are non-living. Easy. Okay, कैसे है पता है? See, there are certain guests in our relative circle. Okay, when they come to our house, they take over our kitchen, and then they make everything which we don't like, and they love it very much. ठीक है, तो वो दुनिया भर की सब्जियां बना देंगे, दुनिया भर की चीजें बना देंगे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके, एंड जस्ट बिकॉज वो गेस्ट है तो हम उनको ना भी नहीं बोल सकते. वो बोलेंगे अरे कैसा बना है, तो हमको बोलना पड़ेगा अरे वाह क्या भिंडी बनी है, मजा ही आ गया. ओके, जबकि भिंडी तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है. सो वायरस इज समवॉट लाइक, they are somewhat like them. Okay, what happens is when the virus enters our cell, what it does, उसका जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेगा और हमारे सेल से उसका सामान बनवाएगा. Are you getting my point? It infects the cell, it injects its own DNA or RNA, and then from the virus's DNA or RNA, it transforms the cell's DNA to form genetic material for the viruses. मतलब ये वो मेहमान है जो हमारे घर का पूरा राशन खा जाएगा, ठीक है, और हम लोग उसी के लिए खाना बनाते जाएंगे. विल कीप ऑन मेकिंग इट, और जैसे हमारे घर का राशन खत्म हो जाएगा फिर वो हमारे पड़ोसियों के वहां चले जाएंगे, फिर वहां से उनके बाजू में, वहां से उनके बाजू में. दैट इज हाउ दे रेप्लिकेट देमसेल्फ. द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम. वेनम का मतलब वायरस का मतलब होता है वेनम. वेनम इज नथिंग बट पॉइजनस फ्लूइड विच वाज गिवन बाय पास्च्योर. ठीक है, लुई पास्चर ने दिया था. पास्चर बोलते हैं, इट इज प्रोनाउंस्ड एज पास्च्योर, बट आप लोग पास्चर ही बोलना बिकॉज पास्चर बोलोगे तब जाके स्पेलिंग राइट आएगा. ओके, हु गेव द नेम वायरस? पास्चर, लुइस पास्चर, वही पास्चराइजेशन वाला पास्चर है ये. इसको आइसोलेट कितने किया था वो देखते हैं. डीजे एवानोस्की in 92 recognized certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco. टोबैको मोजेक वायरस, मतलब सबसे पहला जो वायरस देखा गया था वो ये वाला वायरस था. व्हाट ही डिड वाज, उसने देखा कि कुछ प्लांट, टोबैको प्लांट है. टोबैको में, टोबैको इज अ कैश क्रॉप, राइट? मतलब टोबैको को हम एज क्रॉप ग्रेन यूज नहीं करते, बट उसका हम लोग बाकी सारे प्रोडक्ट बना के उसको सेल करते हैं और वो बहुत कॉस्टली है, मतलब उसका बहुत डिमांड है टोबैको का. तो टोबैको का लीफ ही सब कुछ है. लीफ को ही कट करके ड्राई करके अलग अलग फॉर्म में टोबैको कंज्यूम किया जाता है, राइट? सो टोबैको का जो लीफ था उसमें जब कोई टाइप का इन्फेक्शन होता था तो पूरा का पूरा मोज़ेक फॉर्मेशन होता था. मोज़ेक फॉर्मेशन का मतलब है पूरा ग्रीन कलर चला जाता था और जो अंदर जो ब्राउन ब्राउन कलर का वेनेशन होगा सिर्फ वो दिखाई देता था. उसको हम कहते हैं मोज़ेक डिजीज. तो दिस मोज़ेक डिजीज वाज सीन इन दिस टोबैको प्लांट. सो व्हाट Ivanovsky did was
उसने इसको, ये जो प्लांट, ये जो लीफ था जिसपे इन्फेक्शन हुआ था, उसने उसको क्रश किया, उसको लिक्विड में डाला और वो लिक्विड को उसने पास किया थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। मतलब ऐसा फिल्टर से उसको पास किया जो छोटे से छोटे बैक्टीरिया को भी फिल्टर आउट करता हो। और फिर जो लिक्विड बचा वो लिक्विड उसने फिर से डाला टोबैको प्लांट के ऊपर। एंड देन ही सॉ कि ये लिक्विड डालने के बाद भी ये जो टोबैको प्लांट है उसके ऊपर फिर से वो बीमारी लग गया, मोजैक डिजीज हो गया। विच मीन्स ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया से तो डेफिनेटली छोटा है, बिकॉज जब मैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से अगर पास करता, अगर ये बैक्टीरिया होता तो बैक्टीरिया यहीं पर रहता और ये लिक्विड से फिर कुछ डिजीज नहीं होना चाहिए था। यस और नो? बट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो द प्लांट स्टिल हैड डिजीज। तो डीजे इवानोस्की ने बोला ये जो लिक्विड है ये लिक्विड ही वेनम है, मगर इसमें कुछ ऐसा है विच कैन कॉज डिजीज आफ्टर इवन आफ्टर पासिंग इनटू द बैक्टीरिया फिल्टर। ओके, DJ Vanosky recognized certain microbes as smallest organism of the mosaic disease of tobacco. They were found to be smaller than the bacteria because they pass through the bacteria-proof filters. ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट है बाइजरनिक। तो सबका याद रखो किसने क्या क्या किया। पास्टर ने नाम दिया, क्या नाम दिया? वायरस। डीजे एवनस्की ने बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है टोबैको मोज़ेक वाला वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। अब बाइजरनिक ने 1898 में यानी 6 साल बाद एक्सपेरिमेंट किया टू एक्सट्रैक्ट द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल दिस फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, क्या बोला देखो ध्यान से। बाइजरनिक ने एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने वो फिल्टर को यूज किया, ठीक है, और उसको वो फिल्टर से प्रूव किया कि ये फिल्टर से भी वापस बीमारी हो सकता है। एंड वो जो लिक्विड है उसका नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम यानी पॉइजनस, फ्लूइडम यानी लिक्विड, यानी ये इन्फेक्शियस पॉइजनस फ्लूइड है। उसके बाद WM स्टैनली showed that viruses could be crystallized. Who showed that viruses could be crystallized? Stanley showed that viruses could be crystallized, and crystals consist largely of proteins. They are inert outside the specific host virus. Viruses are obligatory parasite. फिर स्टैनली ने बोला कि ये जो लिक्विड है उसको हम क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, और ये जो क्रिस्टल है उसका एक इनर्ट या स्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये सेल के बाहर यानी होस्ट के बाहर ये पूरी तरह से इनएक्टिव है, पूरी तरह से कुछ एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। दे आर स्पेसिफिक होस्ट, मतलब ये होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब जैसे टोबैको का डिजीज है तो टोबैको को ही होगा। ओके, और ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है विच मींस दे कैन नॉट बी फ्री लिविंग, वो खुद से जिंदा नहीं रह सकते। दे रिक्वायर अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? यस। So this is about the contribution of scientists in the virus part. Pasteur gave the name virus. Ivanovsky showed that mosaic disease was in tobacco that was caused by something which was smaller than bacteria. Biogenik demonstrated that the liquid after tobacco mosaic disease can also cause disease into the healthy tobacco plant. And Stanley proved that the viruses are mainly made up of protein and they are inert. Clear? ये चारों साइंटिस्ट का क्लियर है? एनी डाउट सौम्या, रिया? चलो आगे बढ़े। No. ओके, in addition to proteins viruses also contain genetic material that could be either DNA और RNA. No virus contains both RNA and DNA. देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई भी वायरस में RNA और DNA दोनों नहीं होता है, बट मैंने आपको कहा कि यू हैव टू फाइंड अ वायरस विच हैज बोथ RNA एंड DNA. रिमेंबर, वो जो वायरस आप ढूंढोगे भी उसमें RNA DNA दोनों होगा, मगर दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं है, दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा। इज दिस क्लियर? जैसे हमारे पास भी RNA DNA है, बट हमारा DNA जेनेटिक मटेरियल है, RNA जेनेटिक मटेरियल नहीं है। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाला वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, और जो एनिमल्स है, एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, दे हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA. तो ये भी लिख दो वहां पर साइड में, प्लीज राइट इट दिस वे, ये वाली स्पेस में। SSRNA
plant diseases, SS RNA, double stranded RNA or double stranded DNA, animal diseases. Clear? Yes. Bacterial viruses or bacteriophages that infect the bacteria are usually double-stranded DNA viruses or dsDNA bacteriophages. मतलब जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड. प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? कैप्सिड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोटीन coat that is called capsid is made up of small unit called capsomeres which protects the nucleic acid. Capsid is made up of small units called capsomeres. These capsomeres are arranged in a helical or polyhedral geometric form. हेलिकल फॉर्म में, पॉलीहेड्रल यानी कोई भी शेप का हो सकता है या कोई ज्योमेट्रिक फॉर्म का हो सकता है. Viruses causes disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS in human is also caused by a virus. कौन से वायरस से होता है AIDS? AIDS is caused by HIV virus, that is human immunodeficiency virus. Okay. Mumps पता है कि यहाँ पर ये गाल फूक जाता है, that is mumps. Smallpox चिकन पॉक्स जैसा होता है. हर्पिस दो टाइप का होता है. हर्पिस ज़ूस्टेरा होता है और एक हर्पिस होता है जो एसटीडी से स्प्रेड होता है. ये भी चिकन पॉक्स जैसे छोटे छोटे होते हैं बट स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे आएंगे. इन्फ्लुएंजा वायरस, सर्दी खांसी वाला वायरस, एड्स, ये सारे वायरल डिजीज है. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन. मोज़ेक फॉर्मेशन यानी पूरा लीफ का ग्रीन पार्ट उठ जाएगा. लीफ रोलिंग, लीफ रोल हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा. येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, येलो हो जाएगा, वेन गेट्स क्लियर्ड. ड्वार्फिंग यानी साइज कम हो जाएगा. एंड स्टंटेड ग्रोथ, द ग्रोथ रिमेन स्टेशनरी. प्लांट ग्रो करता ही नहीं है. ये सारे कुछ कॉमन फीचर्स है प्लांट के जो वायरस से अफेक्टेड है उनका. क्लियर? दैट इज अबाउट वायरसेस. काफी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं वायरसेस. जिसको इन्फेक्ट करते हैं उसी को करेंगे. कैटेगरीज है, ठीक है. प्लांट वाला प्लांट को इन्फेक्ट करेगा. प्लांट वाला है तो उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा. एनिमल वाला है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा. बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला है तो डेफिनेटली डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा. क्लियर? अब आते हैं वायरॉइड्स पे. इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड a new infectious agent that was smaller than virus. Very very important. ये वायरस से भी छोटे हैं. That caused potato spindle tuber disease, that is PSTV. potato spindle tuber disease को PSTV भी लिखते हैं. Please write that down. PSTV. It was found to be a free RNA. ये क्या था? फ्री जेनेटिक मटेरियल था. सीधी सी बात है, वायरस में प्रोटीन कोट है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है. अगर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल तो डेफिनेटली वायरस से छोटा ही होगा. The RNA of the viroid was of low molecular weight. एकदम low molecular weight का viroid RNA था. Prions are nothing but proteins. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisted of abnormally folded proteins. तो इसके पास बहुत सारा folded protein था, abnormally folded protein था. The agent was similar to the size of virus. और ये जो agent था वो वायरस से similar था साइज में. These agents were called as prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, commonly called as mad cow disease in cattle, and an analog variant of C. Jacob disease in humans. अच्छा, तो ये बनता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब ब्रेन का डिसऑर्डर है. इसमें कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रेन के सेल्स को खाने लगते हैं. तो इसमें डेमेंशिया होता है. डेमेंशिया इज डेथ ऑफ न्यूरॉन्स. बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिजीज है.
ये आइडियली प्लांट्स में नहीं होता है, ये एनिमल्स में ही होगा, और एनिमल में भी मैमल्स में होगा जिनके पास वेल डेवलप ब्रेन है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी मतलब पहले काउज में था। बोवाइन यानी काउ और बफेलो के कैटेगरी को बोवाइन कहते हैं। स्पॉन्जिफॉर्म यानी स्पंज जैसा हो जाना। एंसेफेलोपैथी यानी इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन। इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो बहुत गौरी डायग्राम है। I'll just still show you how this mad cow disease looks like. मैड काउ डिजीज होता है काउस को। अगर वही डिजीज वाले काउ को अगर किसी ह्यूमन ने इन्फेक्ट खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो ह्यूमन को हो जाता है सीजे डिजीज, दैट इज CR जेकब डिजीज, वो साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इसमें काउ एक्चुअली मैड हो जाती है बिकॉज ब्रेन के सेल्स खत्म होने लगते हैं और इमेंस पेन होता है। ओके it becomes very aggressive and the cow starts eating everything which should not be eaten. Okay, ऑल्दो इंडिया में ये डिजीज बहुत कम है। अच्छा, ये होता कब है? अगर आप रॉ मीट खाते हो, रॉ मीट अगर कोई एनिमल का खाया या अनकुक्ड मीट खाया या इंटरनल ऑर्गन्स खाए तो ये डिजीज हो सकता है। और इंडिया में इन जनरल बहुत सारे कम्युनिटीज है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे क्रीड्स है। बहुत कम ऐसा है कि हम लोग रॉ मीट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। सभी एकदम अच्छे से, इन जनरल इंडियंस ओवर कुक करके ही खाना खाते हैं। तो ये बहुत सारे ट्राइबल, जो अफ्रीका के ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पर, दे व्हेन दे टर्न फ्रॉम टीनेज टू अडल्ट, जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है, वहां पर दे आर टोल्ड टू कंज्यूम रॉ मीट। तो वहां पर जब अगर उन्होंने काऊ के मीट को खाया, काऊ के ब्रेन को खाया जो अनकुक्ड है, तो उनको ये डिजीज हो सकता है। ठीक है, और अच्छा वो ब्रेन का इमेज है नहीं, बट यस, ऐसे जॉम्बी डिजीज भी बोलते हैं बिकॉज बहुत सारा यू ट्राई टू इमेजिन स्टफ एंड वंस इट इज, जब ऑपरेशन होता है, जब ब्रेन खोला जाता है तो एंटायर ब्रेन बिकम्स लिक्विड इन टेक्सचर, तो पूरा जेली जेली लिक्विड जैसा हो जाता है। एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग बिकॉज आपके जो सेल्स है वही खत्म हो जाते हैं। एंड ये ठीक नहीं होता ये डिजीज। ओके, CR जेकब डिजीज। फिर आता है लाइकेन। लाइकेन इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी। देयर इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंगाई। ओके, सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, जहां पर दोनों को ही फायदा होता है। अलगे कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। याद करो, फाइको इज रिलेटेड टू अलगे, वी हैव लर्नड इट। एंड फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। द टर्म माइको इज रिलेटेड टू फंगाई विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। मतलब आल्गे जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, फंगस जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। आल्गे प्रिपेयर्स फूड, आल्गे जो है वो खाना बनाएगा। आल्गे प्रिपेयर्स फूड फॉर फंगाई एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। हाँ, आल्गे क्या क्या कर रहा है देखो, आल्गे खाना बनाएगा और फंगाई क्या करेगा, दे प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो आल्गे का काम है सिर्फ खाना बनाना, बाकी जो भी काम होगा, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, शेल्टर, ये सब कुछ कौन करेगा? फंगाई। क्लियर? सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators, very very important. ये वहीं पर ग्रो करेगा जहां पर पोल्यूशन एकदम ही कम होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, पोल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो बिल्कुल भी नहीं करेगा। एंड दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। इन जनरल आपका जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर दैट इज मेड फ्रॉम लाइकेंस। ओके, देन मेनी स्पाइस, बहुत सारा स्पाइस भी लाइकेन से बनता है। जैसे एक स्पाइस है जिसको हम कहते हैं दगड़ फूल। डेफिनेटली आप सबने दगड़ फूल देखा होगा। बताता हूँ क्या होता है दगड़ फूल। ये देखा है आपने शॉप में, ये एक स्पाइस है जो यूज करते हैं, ये गरम मसाला बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इस तरह से मिलता है दगड़ फूल। इन जनरल आपने गरम मसाला, किचन किंग मसाला, बिरयानी मसाला, पाव भाजी मसाला जो भी खाया हो उसमें ये डेफिनेटली यूज होता है। इट गिव्स अस नाइस फ्लेवर टू योर फूड। ओके, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट लाइकेन।
बट सारे ही लाइकेन हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ये लाइकेन हम कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ लाइकेन्स पॉइजनस भी हो सकते हैं। ओके, इसको हम स्टोन फ्लावर भी कहते हैं बिकॉज इट ग्रोज ऑन स्टोन। ऑल्सो लाइकेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अगर कोई भी पुराना रॉक है उसके ऊपर लाइकेन ग्रो करता है तो नॉर्मली रॉक को सॉइल बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है, बट अगर लाइकेन ग्रो करता है तो वही काम हंड्रेड्स ऑफ ईयर में हो सकता है। क्लियर? यस। सो here we end your second chapter. Right now only I'll send you the notes। इसका ये वाला पार्ट है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप ये रेफर करके आपका नोट्स बना सकते हो। पॉइंट नंबर 2, हर चैप्टर में, आई रिपीट, हर चैप्टर में जो समरी वाला पार्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समरी वाला पार्ट आप हर चैप्टर का एक एक लाइन रीड करोगे। 11-12 दोनों ईयर का मिलाकर देयर आर 38 चैप्टर्स इन बायोलॉजी, एंड ये 38 चैप्टर में से आउट ऑफ 32 to 34 चैप्टर्स का समरी में एक या दो स्टेटमेंट ऐसा होगा जो पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं दिया है ऊपर वाले पार्ट में, बट वो समरी में दिया हुआ है। यूजुअली बच्चों को लगता है कि समरी में तो वही है ना जो ऊपर दिया है, शॉर्ट में लिखा है, नहीं, उसको रीड करो, शायद कोई सेंटेंस ऐसा अलग हो जो शायद हमने ऊपर ना पढ़ा हो। ओके, और वो स्टेटमेंट पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, बी इट सीईटी और बी इट नीट। ओके, if you take around I think so 2013 और 2015 के ईयर का अगर आप नीट का पेपर देखोगे वो पूरे 90 क्वेश्चन में देयर वाज 6 क्वेश्चंस फ्रॉम समरी। 6 क्वेश्चन यानी 24 मार्क्स समरी से पूछा। इमेजिन करो जो बच्चे ने वो समरी कभी पढ़ा ही नहीं होगा उसका 24 मार्क्स तो वैसे ही चला जाएगा। तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट टाइम टू रीड समरी इज व्हेन आई टेल यू। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी समरी रीड कर ले, ठीक है? आधा ही पेज है, हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगेगा मैक्सिमम, अगर एक एक वर्ड ऐसा अलग अलग पढ़ोगे तो। अच्छे से रीड करो, जो स्टेटमेंट तुमको सही लगता है उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है? हियर वी एंड योर चैप्टर, ठीक है? एक्सरसाइजेस काफी सिंपल सा है, एंड इसका टेस्ट हम रखेंगे ये वीक में, ये वीकेंड में, यानी सैटरडे या संडे को। ओके, कूल। यस सौम्या, रिया, Yes, sir. मेक श्योर बिफोर द टेस्ट आपका नोट्स बन के रेडी हो, बिकॉज अगर नोट्स बना है विच मीन्स आपने चैप्टर रीड किया है और आपने मेहनत किया है नोट्स बनाने का, विच विल गिव यू एन एज व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर टेस्ट, ठीक है? चलो, तो आई विल एंड दिस सेशन हियर। आज हमने ये चैप्टर खत्म किया, आई विल सेंड यू द नोट्स राइट नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय।